کیا آپ جانتے ہیں کہ ضرور انسان کو کہاں سے کہاں تک لے کر جا سکتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ لالچ کی چادر میں لپٹی خوشی کتنی دیر تک چلتی ہے؟ اور کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک عورت کی سب سے بڑی دشمن اکثر عورت ہی ہوتی ہے؟ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک ایسی ہی کہانی جو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گی۔ یہ کہانی ہے ہانیہ کی، جو ایک کامیاب گورنمنٹ افیسر تھی، جو بچوں کی ماں، مگر پھر انہوں نے اپنے ضرور، اپنی ضد اور دوسروں کی باتوں میں آ کر وہ سب کچھ کھو دیا جو اس کے پاس تھا۔ آج ہانیہ ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں اپنی کہانی سنانے کے لیے۔ ہانیہ، ہم آپ کی آواز کو اپنی آڈینس تک پہنچانے کے لیے تیار ہیں۔ پلیز آپ بتائیں کہ آپ کی زندگی نے وہ کون سا موڑ لیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ جی ہانیہ صاحبہ، سب سے پہلے آپ اپنا تعارف کرائیں۔ جی، میرا نام ہانیہ ہے۔ الحمدللہ گریڈ 18 کی ملازمہ ہوں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں، اور بدقسمتی سے 2 بچوں کی ماں اور خلا یافتہ بھی ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ عورت ہمیشہ جذباتی ہوتی ہے، جذبات میں آ کر فیصلہ کر لیتی ہے جو کہ اسے نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا چاہیے، لیکن میری قسمت خراب تھی کہ میں بھی جذبات میں آ کر وہ فیصلے کر گئی جس کی وجہ سے مجھے ابھی تک سفر کرنا پڑ رہا ہے۔ 37 سال میری عمر ہے۔ 28 سال کی عمر میں میری شادی ہوئی تھی۔ میری شادی اپنی فیملی میں ہوئی تھی۔ میرے ہسبینڈ بھی ایک گورنمنٹ جاب ہولڈر تھے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں وہ جاب کرتے تھے، اور ان کا گریڈ 15 تھا۔ میری پہلی اولاد بیٹا تھا۔ بیٹے کی پیدائش تک ہم جوائنٹ فیملی میں رہے اور اچھا وقت گزرا۔ اب میں ویسے جھوٹ کیوں بولوں، جوائنٹ فیملی میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہاں سب بہت اچھے تھے، مگر میرا جوائنٹ فیملی میں رہنے کا دل نہیں کرتا تھا۔ میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا ہم اپنا گھر بناتے ہیں اور الگ ہو جاتے ہیں۔ ہم دونوں کی سیلری اتنی تو ہے کہ ہم 1 سال میں اپنا گھر نیا بنا لیں گے، اور گاڑی بیچنی پڑی تو بیچ کر پہلے گھر بنا لیں گے، پھر گاڑی دوبارہ لے لیں گے۔ میرے شوہر اس بات پر راضی ہو گئے۔ ہمارے پاس جو پیسے تھے ہم نے پلاٹ لے لیا، اور ایسے ہی ہم نے 1 سال کے اندر دونوں نے مل جل کر اپنا گھر بنا لیا۔ میری سیلری میرے ہسبینڈ سے زیادہ تھی۔ گھر بن گیا، ہم الگ ہو گئے۔ الگ ہونے کے بعد گھر میں چھوٹے موٹے مسئلے تو ہوتے ہیں، ہر گھر میں ہوتے ہوں گے، مگر سچ بولوں تو مجھے اپنی نوکری پر بڑا غرور تھا، اور میں اپنی نوکری کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھی تھی، جو کہ میری لائف کی سب سے بڑی بے وقوفی تھی، جو آج مجھے سمجھ آ رہی ہے۔ پھر میری بیٹی کی پیدائش ہوئی، اور ہاں، یہاں ایک بات یاد رکھنا، عورت کی اصل دشمن ایک عورت ہی ہوتی ہے۔ مرد اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنی ایک عورت کو پہنچاتی ہے۔ گھر جو ہم نے بنایا تھا اس میں زیادہ پیسے میرے تھے، کیونکہ میری سیلری زیادہ تھی، اور اس کی وجہ سے مجھے غرور و تکبر بھی تھا۔ گھر میں کوئی بھی بات ہوتی تو میں بات بات پر تانا دیتی کہ گھر میں میرے پیسے زیادہ ہیں، تمہارا کیا ہے؟ بس پھر دیکھتے ہی دیکھتے میری کزن، جس کا آنا جانا زیادہ تھا میرے گھر، اس نے مجھے ورغلانا شروع کر دیا کہ تم اپنے شوہر سے زیادہ سیلری لیتی ہو اور وہ کام لیتا ہے۔ ایسے ہی اس نے مجھے کہانیاں ڈالنا شروع کر دیں۔
मुझे अपने हस्बैंड से पहले ही इख्तलाफ था, ऊपर से मेरी कज़न ने जलते पर तेल का काम किया। खैर, मेरे दिल में उनके लिए नफरत पैदा करती रही। उसने इस कदर मेरे दिमाग में जहर घोला कि मैं अपने बच्चों तक को भूल गई। ये भी भूल गई कि मेरे तो 2 बच्चे भी हैं। लड़ाई झगड़े बढ़ते गए। हमने एक गाड़ी ली थी, इसमें भी मेरे पैसे ज्यादा थे। बदकिस्मती मेरी कि मैंने अपने खामद को एक दिन कह दिया कि या तो आप मुझे गाड़ी के पैसे वापस करें या फिर आज के बाद आप गाड़ी इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये बात मेरे लिए तो मामूली थी, मगर उनके लिए तो नहीं होगी, क्योंकि मेरे अंदर जहर इतना घोल दिया गया था। उन्होंने गाड़ी बेच दी और मेरे हिस्से के पैसे मुझे वापस कर दिए। मेरे जो खावंद थे उनके बड़े भाई कनाडा में होते थे। वो घर आए, 3 माह रहे और वापस जाते ही उन्होंने गाड़ी अपने भाई को दे दी। वो काफी महंगी गाड़ी थी, मुझसे बर्दाश्त ना हुई तो मैंने एक दिन मुतालबा कर दिया कि घर में मेरे जो पैसे लगे हैं मुझे वो भी वापस करो। और मैं ये सब कुछ इसलिए वापस ले रही थी क्योंकि मैं अपनी इस कज़न की बातों में आकर खुला का फैसला कर चुकी थी। अल्लाह इसको भी हिदायत दे, मगर जो ऐसे किसी के घर बर्बाद करता है खुदा उसे भी कभी खुश रहने नहीं देता। खुश वो भी आज नहीं है। उन्होंने वो गाड़ी बेची और मुझे मेरे घर वाले पैसे वापस कर दिए। बाकी जो पैसे बचे थे उन्होंने नौकरी छोड़ दी और इन पैसों से अपना बिजनेस शुरू कर लिया। एक होटल ओपन किया था। आज उनके पास अपने ज़ाती 3 होटल हैं और मैं गरूर तकब्बुर में डूबी हुई औरत नफ्सियाती मरीज बन चुकी हूँ। जब वो पैसे मुझे मिल गए मैंने तलाक का मुतालबा कर दिया। उन्होंने और मेरे घर वालों ने मुझे तब बहुत समझाया, मगर मेरी अक्ल पर पर्दा पड़ चुका था। नहीं समझी, क्योंकि मेरी जो कज़न है, अब यहाँ अगर मैं मज़ीद कुछ कहूँगी तो मुझसे होने वाली गलतियाँ मुझे खुद एक औरत ज़ात की तौहीन लगेंगी। बहरहाल मैं अपनी कज़न की बातों में आ गई। इसका जो देवर था, इसकी पहली बीवी फौत हो चुकी थी और उसकी एक बेटी थी और वो शख्स आर्मी में मेजर था। मैं भी ज्यादा की लालच में और बड़े ओहदों की लालच में इसकी बातों में आ गई और तलाक ले ली। और मुझसे दूसरी गलती तब हुई जब मेरे शोहर ने मुझे तलाक एक शर्त रख कर दी थी कि मैं बच्चे तुम्हें नहीं दूंगा। तो मैंने इस शर्त को कबूल कर लिया और तलाक ले ली। इद्दत पूरी होने के बाद मेरी कज़न ने अपने देवर के साथ शादी करवा दी। 4 माह वहां रही, नौकरी भी करती, पैसे वो सारे ले लेते। घर उनका बहुत बड़ा था, मगर कोई सुकून नहीं था। हर वक्त टॉर्चर ही करते। अपने बच्चों को छोड़कर उसकी बच्ची को संभालती। सुबह स्कूल जाती तो बच्ची को साथ लेकर जाती और वापसी पे आती तो उसकी बच्ची को वापस लेकर आती। उनके घर में बड़ी बड़ी गाड़ियां, ड्राइवर सब कुछ थे, मगर मैं रिक्शे पर आती जाती थी। और वो मेरी कज़न जिसकी मैंने हर बात मानी थी, वहां मेरे साथ इसका रवैया ऐसे हो गया था जैसे मैं कोई उसकी दुश्मन हूं। वक्त गुजरता गया। मैं जिस नौकरी को अपना सहारा समझती थी, 11 माह वहां रही। अपनी सैलरी से मुझे मेरे घर वाले 10,000 महीने का देते थे कि यही तुम्हारा जेब खर्चा है। 11 माह के बाद पता चला कि उसने इस्लामाबाद दूसरी शादी कर रखी है। वहां मैंने बहुत निभाने की कोशिश की और ये तहैया कर लिया था कि अब कुछ भी हो जाए यहाँ से कहीं नहीं जाना, मगर वो बार बार कहता, जाओ मेरी तरफ से तुम आज़ाद हो। बार बार टॉर्चर करता कि किसी तरह मैं तलाक का मुतालबा करूं। माँ बाप तो माँ बाप होते हैं,
एक दिन अब्बू ने मुझे कहा कि कोई बात नहीं, तुम वापस आ जाओ, वहां ऐसे अज़ियत भरी जिंदगी ना गुजारो। वहां से भी तलाक हो गई, वापस आ गई अम्मी अब्बू के पास। 2 माह बाद मेरे अब्बू की भी वफात हो गई। वही मेरा सहारा थे। भाई 4 हैं, सब शादीशुदा हैं, उनकी अपनी जिंदगी है, अपने बच्चे हैं। अब मेरी हालत ये है, सैलरी तो मैं लेती हूँ, वो जॉब जिस पर मुझे बड़ा गरूर था वो मुझे कोई सहारा नजर नहीं आते। पैसे तो आते हैं, लगाऊं कहाँ। आज मैं अपनी ये दास्तान आप लोगों को सुना रही हूँ। बहुत दुखी थी। आज अम्मी के इसरार पर मुझे मेरे बच्चों से मिलवाया गया। मैंने इनको गाड़ियाँ और कुछ खिलौने लेकर दिए। उनके बाप ने अभी कुछ देर पहले ही अपने छोटे बच्चे के हाथ वो वापस लौटा दिए हैं और मेरे बच्चे अपनी दूसरी माँ के साथ खुश हैं। अब मेरी एक ही जिंदगी की ख्वाहिश है कि जो मैं कोशिश कर रही हूँ बस वो मुझे बच्चे ही दे दे। तो मैं जो दिन ब दिन नफ्सियाती मरीज बनती जा रही हूँ, शायद ही मैं ठीक हो जाऊं, मगर लगता तो नहीं है कि मुझे वो बच्चे देंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि दुआ करें कि वो बच्चे मुझे वापस कर दें। जो गलतियां मैंने की हैं इस काबिल तो नहीं है, मगर अल्लाह के लिए कोई काम मुश्किल नहीं। अल्लाह ताला मुझे मुआफ कर देगा। मेरी आप तमाम बहनों से गुजारिश है जो जॉब होल्डर हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में है या गवर्नमेंट में, सैलरी खामों से ज़्यादा है या कम, कभी जॉब को अपना गरूर तकबर मत बनाएं। बेशक आपके पास पैसा है, जॉब है, मगर पैसा इंसान का सहारा नहीं बनता। आप पैसों से और नौकरियों से खुशियाँ नहीं खरीद सकते। मैंने क्यों किया अपने साथ ऐसा, क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? अमूमन पोस्ट देखने को मिलती है, मर्द ये है, मर्द वो है। कोई शक नहीं, होती होंगे मर्द भी ऐसे, मगर औरतें भी बहुत ज़्यादा ऐसी होती हैं जो गरूर तकबर में अपना खुद हर चीज़ बर्बाद कर देती हैं, फिर पछतावा ही रह जाता है। और मेरी बहनों, कभी भी किसी औरत की बात में आकर अपना घर मत बर्बाद कर लेना। औरत ही औरत की दुश्मन है, ये कभी मत भूलना। मुझे इतनी ठोकरें खाकर समझ आई कि बेशक आपके पास जॉब हो, बहुत बड़ी नौकरी हो, बहुत बड़ी इनकम हो, मगर एक मर्द के बगैर औरत नामुकम्मल है और एक मर्द औरत के बगैर नामुकम्मल है। यही फैमिली होती है, मियाँ बीवी बच्चे, इसके अलावा कोई चीज़ आपको कभी खुशी नहीं दे सकती। और ये मुआशरा ऐसा है, यहाँ एक तलाक याफ्ता औरत कितनी ही पाक साफ क्यों ना हो, इसको हर कोई गलत नज़र से ही देखता है। अपने हूँ या गैर, हर कोई गलती समझता है। अल्लाह हर किसी की बहन बेटी की नसीब अच्छे करे। गरूर तकब्बर से अल्लाह हर एक को बचाए। मेरे लिए दुआ करना, अल्लाह कोई बेहतरी वाला मामला करे, वरना जिस कदर मैं नफ्सियाती मरीज बनती जा रही हूँ, मेरे पास ये नौकरी भी नहीं रहेगी। तो प्यारे व्यूअर्स, आगे की कहानी हमें ये सबक देती है कि गरूर की इमारतें रेत की बुनियादों पर खड़ी होती है और रिश्तों की कदर अक्सर उनके बिखरने के बाद होती है। अल्लाह ने जो दिया है इसे शुक्र से संभाले, जो छिन गया है इसे सबक सीखें और जो बाकी है उसे मोहब्बत से जिए।